Good morning, all of you. Once again, welcome back to our 9th class video lecture. We are going to continue our chapter number 2 in economics, people as a resources. कल हमने education के बारे में पढ़ा था. Today we are going to study health. Before starting my topic, I will show some questions that is very good for your notes. See the question, what is Sarva Shiksha Abhiyan? It is a step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years. It is a time-bound initiative of the central government in partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. Means कि ये एक स्टेप है एलिमेंट्री एजुकेशन देने के लिए बच्चों को 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, और ये टाइम बाउंड इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्टनरशिप है किसके साथ? स्टेट के साथ, और लोकल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल होती है, एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल, और जो कम्युनिटी है ये इसका गोल है कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए. See the question, what is midday meal scheme? Explain any two of its purpose. First point is midday meal scheme is to provide some nutritional food to student during the days. स्कूल में मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया है? ताकि स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशनल फूड मिले. Second point, midday meal scheme has been implemented to encourage attendance and retention of children in school. मिड डे मील भी इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि बच्चों को एक एंकरेजमेंट मिले, यानी वो उत्सुक होएं स्कूल में आने के लिए और स्कूल के अंदर ही रहने की कोशिश करें ताकि स्कूल छोड़ के नहीं जाएं. इट्स एम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन. इसका एम ये भी है कि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशंस की पूरी हो. दिस पॉलिसी कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और इसलिए इसको लिटरेट पॉपुलेशन के अंदर जोड़ा गया है. So this question, mention any 4 steps which have been taken by the government to promote education. Education को promote करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या steps लिए हैं? First point is government has launched various schemes for providing universal access, retention and quality in elementary education with the special emphasis on girls. गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हैं जिससे लोगों में स्कूल में जाने की जो है इच्छा वो पूरी हो, लोग स्कूल जाएं और स्कूल के अटेंडेंस में भी कमी नहीं आए और एजुकेशन क्वालिटी सुधरे. स्पेशली इन्होंने गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है. देयर इज आल्सो एन establishment of pace setting of school like the Navodaya Vidyalaya in each district. गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है नवोदय विद्यालय लगाने से, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने नवोदय विद्यालय लगाए. थर्ड पॉइंट इज vocational stream have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills. vocational streams डेवलप की गई हैं ताकि लोगों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ में कुछ स्किल्स या नॉलेज लेने की भी जानकारी मिले, ताकि वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो एक अच्छे इंजीनियर बन जाएं, अच्छे प्लम्बर बन जाएं, अच्छे कारपेंटर बन जाएं. तो इस तरह की स्ट्रीम्स चालू गई हैं. नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, ये हमने पढ़ा था अभी, जस्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था. इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टूवर्ड्स प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप of 6 to 14 years. It is a time-bounded initiative of the central government in the partnership with the state, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. The Right to Education Act has been passed by the Indian Parliament to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर.
Let's start today's topic. Let's start today's topic health. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? ये आपसे कह रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसे वर्कर को एम्प्लॉय करेंगे जो बीमार रहता हो, काम ढंग से नहीं कर पाता हो? The health of a person help him to realize his potential and the ability to fight illness. Health आपको हेल्प करती है, आपको अंदर पोटेंशियल पैदा करती है, क्षमता पैदा करती है ताकि आप बीमारी से लड़ सकें. An unhealthy person become a liability for an organization indeed. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. तो कह रहे हैं कि एक अनहेल्दी पर्सन क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी है. हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. हेल्थ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है. Henceforth, सी द पिक्चर, हेल्थ सेंटर. स्कूल्स में हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम होता है, जैसा हमारे बीच में अभी एक बार हुआ था, आपने देखा था. Children standing in queue for health checkup. See few defines are there. कुछ डिफाइन है नीचे, इनको भी अपने नोट्स में आपको इंक्लूड करना है. Infant mortality rate is the death of a child under 1 year of age. Infant mortality rate का मतलब होता है कि 1 साल में कितने बच्चे मर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप, बर्थ रेट. ये आपने पहले भी पढ़ा था, स्मॉल क्लासेस में पढ़ा था आपने. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट, डेथ रेट. ये भी आपने पढ़ा था. डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट समझ में आ गया होगा. ये जस्ट नया डिफाइन है, बाकी तो आपका सेम डिफाइन है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब यही होता है कि 1 साल का बच्चा, 1 साल वाले बच्चे कितने 1 साल में मर रहे हैं, उनकी रेट को काउंट करना. अगेन क्वेश्चन ये प्रूफ होता है कि किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज हमारे कंट्रीज में है. इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट करना ही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है. आवर नेशनल पॉलिसी टू एम ऑफ इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद अ स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन. तो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसका भी एम रहता है कि हम न्यूट्रिशन वैल्यू को सुधारें, फैमिली वेलफेयर के बारे में भी काम करें. ओवर द लास्ट 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and has developed man power required at primary. तो हमारे लास्ट 5 decades से ही इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग रहे हेल्थ का, और मैन पावर प्राइमरी तक हमारा स्ट्रांग रहे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर, सभी सेक्टर्स में हमारी मैन पावर स्ट्रांग रहे. These measures adopted have increased the life expectancy to over 66 years in 2011. Infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to and 42 in 2012. Crude birth rate have dropped to 22.1 and death rate to 7 within the same duration of time. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. Increasing longevity of life is an indicator of good quality of life, marked by self-confidence. Reduction in infant mortality rate involves the protection of children from
इन्फेक्शन, इंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद मदर्स एंड चाइल्ड केयर। तो ये सब हमारे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के कुछ डाटाज हैं। इसमें बताया गया कि ये सब से क्या फ़ायदा मिलेगा, कैसे हम रिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल बता रखा है, हेल्थ SCPHC ईयर वाइज बता रखा है, देख सकते हैं आप 2013 तक का। डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सिंग पर्सनल्स कितने हैं। नीचे जो ऊपर हमने पढ़ा था, SC का मतलब है सब सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये टेबल हम क्यों देख रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चलता है जैसे कि आज की कंडीशन में हम देख रहे हैं कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं कि नहीं है, हम किसी बीमारी से लड़ने के लिए रेडी है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। तो इसे आने वाले समय में हमें पूरा करना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको डिस्कस करना है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन द डिस्पेंसरीज फ्रॉम 1951 टू 2011? जो भी हमने टेबल देखा उसको देखना है आपको। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू 2011? ये भी देखना है। तो ये सब चेक करने से हमें क्या पता चलेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ कितना स्ट्रांग है। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और उसको ढूंढना है। ये सारे क्वेश्चंस केवल सिर्फ बुक के लिए नहीं है। अगर आप अपने सिटीज़ के बारे में भी देखें या अपने कंट्री के बारे में भी देखें, तो आप अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि हम लोग स्ट्रांग है कि नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे सिटी में ये फैसिलिटीज़ है नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब हम वीक हैं इस पॉइंट पे, ताकि इसे आने वाले टाइम में हमें इम्प्रूव करना चाहिए और हम ऐसी जो महामारियाँ आ रही हैं, पैनिक डिजीज़ आ रही हैं, उन्हें हम दूर कर सकें। There are many places in India which do not have even these basic facilities. अब कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। There are only 381 medical college in the country. डॉक्टर्स की कमी होने का मेन रीज़न भी ये कह सकते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की कमी है। 301 डेंटल कॉलेजेस, ये एक डाटाज है। जस्ट फॉर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। जैसे हम एग्जांपल लें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, तो यहाँ पर कॉलेजेस अच्छी नंबर्स में है। यहाँ पर एक एक्टिविटी बता रखी है, लेकिन इस टाइम में आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हमें ये नहीं करना है, हमें जस्ट ऐसे ऑब्जर्वेशन के लिए देखना है। विजिट, हम सिर्फ इसको अखबार में देख सकते हैं। विजिट अ नियर बाय हॉस्पिटल इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल। हाउ मैनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। यानी आप जिस हॉस्पिटल में गए वहाँ पर कितने बेड हैं, ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वो हॉस्पिटल कितना स्ट्रांग है। जैसे हम अमृत कौर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाते समय ऑटोमेटिक आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते, तो आपको उन क्वेश्चंस के लिए रेडी रखना है। तो मेनली हमें फोकस किस पे करना है, आंसर लिखने के तरीके पर और लैंग्वेज पर। जितना फैक्टफुल आंसर लिखेंगे उतना आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। These are few questions you have to be noted for your सर्वे कहते हैं हम इसे, कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी है हमारे सिटीज़ में, जिसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर चिल्ड्रन and help her husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Setu spend their times playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Setu unemployed? If not, why? यहाँ बता रहे हैं कि सकल का एग्जाम्पल दोबारा से दिया कि सकल की मम्मी क्या करती है, जिनका नाम शीला है, वो घर में काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, हस्बैंड की भी हेल्प करती हैं। सकल्स ब्रदर जीतू एंड सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग। सीतू अपना समय खेलने में और घूमने में पास करती है। तो कह रहे हैं कि क्या शीला और जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहेंगे क्या? तो आपने पढ़ा था वुमेन्स के वर्क को पे नहीं किया जाता, तो किस में आती हैं?
अनएम्प्लॉयड के अंदर ही आ सकता है, जीडीपी में ज्वाइन नहीं करते। जीतू और सीतू क्या है, छोटे हैं, डिपेंडेंट है, तो उनको भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये रीज़न है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब। इसको अंडरलाइन करके आपको डिफाइन बनानी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सैड टू एग्जिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जब दिखता है, जब पीपल विलिंग है, यानी उसकी इच्छा है काम करने की, जो वेजेस को मिल रहा है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रहा। सिला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। जीतू सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन। तो ये रीजन है। नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। जीतू सीतू और शीला को भी अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं कर सकते। द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। वर्क फोर्स पॉपुलेशन कौन सी है? 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको नोट में डालना है। सकल brothers and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. सकल के भाई बहन ये दोनों उस एज ग्रुप में नहीं आते, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हम। सकल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली। सकल की मम्मी घर के लिए काम करती हैं। सी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट। और वो बाहर काम नहीं करना चाहती क्योंकि उसको इच्छा नहीं है कि वो पैसे के लिए काम करे। शी टू कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। उन्हें भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हम। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। वैसे तो सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, उनके बारे में इसमें कहानी गया है, उन्हें भी अनएम्प्लॉयड ही हम कहेंगे। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंडिया वी हैव एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हम इंडिया में देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पर है? रूरल और अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज हमें समझ में आना चाहिए वर्ड्स का। रूरल मतलब विलेज, अर्बन मतलब सिटी, सिटी एरिया। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग होता है रूरल और अर्बन एरियाज में? इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज अ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं या केस लेते हैं तो उसमें हमें कौन सा दिखता है? सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अर्बन एरिया को हम लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए क्वेश्चन बनता है आपका, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पैराग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जैसे कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया था आपको डिफाइन अभी। और अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्लासीफाई करें तो कितने होते हैं? सीजनल, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और टेक्निकल भी हम कह सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको समझना है, फ्लो चार्ट में समझ सकते हैं हम इसको। सो students, I am going to end this video. Stay happy, keep healthy, and bye.